जटाजूट सिर गंग चांद्रशेखर चख उत्बह गरल कंठ अहिहार मुंड माला विख बख डमरुशूल कपाल पान धनुबान प्रकाशित वपु विबुध यवधूत सिंह गज चर्म सुवासित वामांग शिवा वाहन वृषभ जयति जयति शंकर अजर रघुनाथ चरित्र कृत ध्यान हित सुमति देहु दाहक समर। चारण शक्ति फेसबुक पेज पर लाइव थયેલા સૌ મિત્રોને જયેશદાન ગઢવી કવિ જયના જય માતાજી, ફતેહદાન કિશન ગઢવી, થારુભાઈ, પ્રકાશદાન આરંગ, જય માતાજી દોસ્તો। આજે આપ સૌને મળવાનું આ એક અભિગમ સાંપડ્યો છે। ચારણ શક્તિ ફેસબુક પેજ પર આપણે સૌ આજ ચારણ મહાત્મા નરહરદાસજીના જીવન કવન અને અવતાર ચરિત્ર ગ્રંથ વિશે થોડીક વાતો કરીએ છીએ। નરહરદાસજીએ 16મા સૈકામાં જ્યારે ભારત વર્ષ સંઘર્ષની એક એવી ભૂમિકામાંથી પસાર થતો હતો કે એક પક્ષમાં અને ભારતના રાજકીય જગતની અંદર બહુ મોટા ઉથલ પાથલ ભયંકર મોટી લડાઈઓ એવો સમય, બીજી અને સનાતન પર ખૂબ મોટી વિપદાઓ અને આપદાઓ, વિવિધ વચ્ચે રહેલા મતભેદો, આ બધાની વચ્ચે ભારત 16મા સૈકામાં તુલસીજી રામચરિત માનસના માધ્યમથી આવ્યા, રસિક બિહારી એમની રામાયણ લઈને આવ્યા, કબીર ભજનના માધ્યમથી આવ્યા, મીરા પદના માધ્યમથી આવ્યા, નરહરદાસજી અવતાર માધ્યમથી આવ્યા। નરહરદાસજી અવતાર ચરિત્રના માધ્યમથી એક એવડું વિરાટ અને વિશાળ અભિગમ કરી અને ચારણી સાહિત્યના ઉપાસકો માટે કર્યું। વાહ વાહ। અને શ્રીમદ ભાગવતે જે 24 એ 24 કોઈ એક કવિએ લખ્યા હોય તો નરહરદાસજીએ લખ્યા છે। તુલસીજીએ રામચરિત માનસની ગાથા લખી, કોઈએ કૃષ્ણ વિશે લખ્યું, કોઈએ બુદ્ધ વિશે લખ્યું, હઠ અને નરહર મતિ અનુસાર મેં શાયર પેરન લહ્યો ને કહન ચરિત અવતાર। મારી અવતાર ચરિત્રની જે રચના છે એ કોઈ કવિતા નથી, આ કોઈ ગ્રંથ નથી, આ કોઈ સાહિત્ય નથી। વીરેન્દ્રજી ગોહિલ, મૂલકરણ ચારણ, કૈલાસ ગઢવી, નેતારામભાઈ સુથાર, કેટલા બધા મિત્રો જોડાણા છે। આપણે વાત એ કરતા હતા કે નરહરદાસજીએ એમ કહ્યું છે કે અવતાર ચરિત્રનું સર્જન એ કોઈ મારું આર્થિક ઉપાર્જન સાહિત્યિક કર્મ એવું નથી, પણ ચારણ જાતિ સુબાર હઠ નરહર મતિ અનુસાર મેં શાયર પેરન લહ્યો ને કહન ચરિત અવતાર। સંસાર સાગરને તરવા માટે આ એક નૌકાનું હું સર્જન કરું છું। મેં શાયર પેરન લહ્યો ને કહન ચરિત અવતાર। અવતાર ચરિત્રનું જે સર્જન છે એ સંસાર સાગરને તરવા માટે એવું કરું છું। અવતાર ચરિત્રના સર્જન પાછળ પણ કેટલીક ઘટનાઓ રહેલી છે, વિસ્તૃત વાતો છે। મને અહીંયા સ્મરણ થાય છે કે જીટીપીએલ ડાયરો ચેનલ પર, ગુજરાતમાં જીટીપીએલ ડાયરો ચેનલ પર અત્યારે અઠવાડિયામાં 3 દિવસ મારા અવાજમાં અવતાર ચરિત્ર પ્રસ્તુત કરવાનું મને સૌભાગ્ય સાંપડ્યું છે। અને અમારી જીટીપીએલ ડાયરો ચેનલની સમગ્ર ટીમ, વિશાલભાઈ રાવલ અને સાહિત્યના મરમી એવા મંગલભાઈ રાઠોડ, એ લોકોએ એક એવા ગ્રંથને પ્રસ્તુત કરવાનો મને અવસર આપ્યો જે ગ્રંથ પર કદાચ એમ કહીએ કે છેલ્લા ઘણા સમયથી સાહિત્ય જગતની માંગ હતી, અપેક્ષા હતી કે કોઈક અવતાર ચરિત્ર બોલે। ભગત બાપુ કવિ કાગ અવતાર ચરિત્ર બોલતા, સોનબાઈમાંની એવી લાગણી હતી। આ સોનબાઈમાં મઢડા સંમેલન પછી જ્યારે જુનાગઢ સંમેલન થયું છે ત્યારે આઈ સોનબાઈ માએ કેટલીક વાતો કરી। એમાં એક વાત આઈ સોનબાઈ માએ એવી કરી કે સોનબાઈ માની જે ચાંદીથી તુલાવિધિ થઈ એ ચાંદીનું ભગત કવિ દુલાભાયા કાગના નામનું એક સાહિત્ય ફંડ ઊભું કરવું। અને એમાં સોનબાઈમાં એક શબ્દ બોલ્યા કે આ સાહિત્ય ફંડના માધ્યમથી આપણે ચારણોની કવિતાઓના અને એમાં
કેટલાક ગ્રંથો બોલ્યા, એમાં સોનબાઈમાં એવું બોલેલા કે આપણે નરહર કૃત રામાયણનું એવા ગ્રંથોનું પ્રકાશન કરશું. એટલે આઈમાને પણ નરહરદાસજીનું આ રામાયણ, નરહરદાસજી રચિત અવતાર ચરિત્રની રામાયણ ખૂબ પ્રિય. ભગત બાપુ કવિ કાગ અવતાર ચરિત્ર બોલતા, પણ એના પછી બધાયની એક માંગણી રહી કે અવતાર ચરિત્ર લોકભોગ્ય હોવું જોઈએ, અવતાર ચરિત્ર લોકો સુધી પહોંચે એવું હોવું જોઈએ. અને મારા પર મહાત્મા નરહરદાસજીની કહું, આઈ સોનબાઈ માની કહું કે મારા પૂર્વજોની કહું, કંઈક એવી કૃપા ઉતરી કે જીટીપીએલના માધ્યમથી અવતાર ચરિત્ર પ્રસ્તુત કરવાનો, સમગ્ર ગુજરાત સમક્ષ રજૂ કરવાનો મને સૌભાગ્ય સાંપડ્યું છે. વર્તમાન સમયે પણ અઠવાડિયામાં 3 દિવસ, દર રવિવારે રાત્રે 9 વાગ્યાથી, દર શુક્રવારે રાત્રે 8 વાગે અને દર શનિવારે બપોરે 12 વાગે જીટીપીએલ ડાયરો ચેનલ નંબર 283 પર અવતાર ચરિત્રનું પ્રસારણ થાય છે. એમાં નરહરદાસજી રચિત સંપૂર્ણ અવતાર ચરિત્ર આપણે ક્રમબદ્ધ રજૂ કરતા જઈ રહ્યા છીએ. અને ચારણી સાહિત્ય જગત માટે એક આનંદનો આ અવસર છે કે સમગ્ર અવતાર ચરિત્ર જીટીપીએલ પરથી ક્રમબદ્ધ પ્રસ્તુત થવાનું છે. તો એ અવતાર ચરિત્ર સાથે કેટલીક ઘટનાઓ જોડાયેલી છે. મારા જીવનમાં અવતાર ચરિત્ર એ દુર્લભ ગ્રંથ પ્રસ્તુત કરવાનું સૌભાગ્ય સાંપડવું એ મિત્રો એ એક મારા જીવનનું સૌથી મોટું સૌભાગ્ય છે. કેટલા બધા મિત્રો, જો આપ બધાએ વિનોદદાન ચારણ, ગોરધનદાન સાતા, જય માતાજી, આખું હિન્દુસ્તાન આજે આપણે આ માધ્યમથી અવતાર ચરિત્રને વાગળી રહ્યા છીએ. રઘુવીરસિંહજી, શ્યામદાન ચારણ, કેટલા બધા મિત્રો જોડાણા છે. હું તમને અવતાર ચરિત્ર વિશે કોઈ આ આડંબર ભરી સાહિત્યિક વાતો નહીં, પણ મારા અંગત અનુભવો પ્રસ્તુત કરું. મને બાળપણમાં સૌથી પહેલા અવતાર ચરિત્રનું નામ મેં મારા પૂજ્ય દાદા બાપુ રઘાજી પાસે સાંભળ્યું. મને કવિતાનો શોખ, મારા કાકા જવારદાન બેઠા છે અહીંયા, આખા પરિવાર સાથે આપણે બેઠા વાતો કરી રહ્યા છીએ, રાણીદાનભાઈ અને છોકરાઓ બધા બેઠા છે. એટલે હું કોઈ પણ નવી કવિતા કંઠસ્થ કરું, કોઈ નવો કવિત કંઠસ્થ કરું, એટલે મારા દાદા બાપુને સંભળાવું અને એમને પણ આનંદ થાય, મને પણ એમને સંભળાવીને આનંદ થાય. મારી ઉંમર નાની ત્યારે આને એક કુદરતી સંજોગ સમજો કે ત્યારે મારા દાદા મને એમ કહેતા કે તું અવતાર ચરિત્ર વાંચજે. આ મને આજે આ ફેસબુકના માધ્યમથી આપ બધાને આ વાત હું સાર્વજનિક રૂપથી કહું છું કે મારા દાદા મને એમ કહેતા, બેટા તું અવતાર ચરિત્ર વાંચજે. એટલે પછી મેં એમને પૂછ્યું કે તમે અવતાર ચરિત્ર વાંચ્યો છે? તો કે ના, મેં અવતાર ચરિત્ર નથી વાંચ્યો, પણ ગણેશદાનજી મેળુ જે થોડા સમય પહેલાં ગુજરી ગયા, આપણા સંબંધી, અને ડીણસીના મેળુ અને મેકેરી રહેતા, એમને અવતાર ચરિત્રના કેટલાક કવિતો કંઠસ્થ હતા. અને એ અવતાર ચરિત્રના કવિતો મારા દાદાએ ગણેશદાનજી પાસે સાંભળેલા. અને એના પછી એમને એમ થયું કે આ ગ્રંથ બહુ સારો છે, એટલે એ મને સતત કયા કરતા કે તું અવતાર ચરિત્ર વાંચજે અથવા તો અવતાર ચરિત્રનો અભ્યાસ કરજે. મારા દાદા બાપુ તો સ્વર્ગવાસી થયા, એના થોડા સમય પછી મારા પરમ મિત્ર હરિભાઈ જખુભાઈ ગઢવી, વર્તમાન સમયે ભુજ માતૃછાયામાં શિક્ષક છે, એમણે મને હસ્તલિખિત અવતાર ચરિત્રનો રામાવતાર આપેલો. ત્યાંથી મને અવતાર ચરિત્ર વાંચવાનું એ સૌભાગ્ય સાંપડ્યું. પછી અવતાર ચરિત્રના કવિતો મને એક પછી એક ગમતા ગયા, હું કંઠસ્થ કરતો ગયો. ડાયરાના માધ્યમથી, સામાજિક કાર્યક્રમોના માધ્યમથી હું અવતાર ચરિત્રને કાયમ પ્રસ્તુત કરતો રહું છું. અને સાચી વાત કહું તો અત્યારે સાહિત્ય જગતમાં જયેશદાન ગઢવી કવિ જયની ઓળખ અવતાર ચરિત્ર છે. મારા કરતાં બીજા દરેક વિષયો પર બોલનારા બહુ બધાય સુજ્ઞ સાહિત્યકાર મિત્રો છે, પણ મને અવતાર ચરિત્ર પ્રસ્તુત કરવાનું જે સૌભાગ્ય સાંપડ્યું છે એ મારું જીવન લક્ષ્ય છે. એ મારા જીવનનો સર્વોત્તમ, કદાચ મારા જીવનનું સૌથી મહત્વનું જો કાર્ય હોય તો એ અવતાર ચરિત્ર છે. એટલે અવતાર ચરિત્ર અને નરહરદાસજી મારા પૂજ્ય કવિ છે. ભગત બાપુએ વર્તમાન યુગમાં જગતને નરહરદાસજી જેવા કવિઓની ઝાંખી આપી છે. કાગ બાપુ વિશે કોઈ કવિએ એક દુઓ લખ્યો, એમાં એવું લખેલું છે કે વાણી તો અમૃત વદાન ભાયાણી ભવતાર દાખા નરહરદાસ રો કે ઈશ્વર રો અવતાર. એ ભગત બાપુ, હે દુલા કાગ, હે દુલા ભાયા કાગ, તારી વાણીની અંદર જે અમૃત રહેલું છે, તારી વાણીની અંદર જે મઠોઠ રહેલી છે, જે મરોડ રહેલી છે, તને હું નરહરદાસનો અવતાર કહું કે ઈશ્વરદાસનો અવતાર કહું. એવું કોઈ ચારણ કવિએ ભગત બાપુ માટે લખેલું છે. આ બધાનું કારણ એ છે કે નરહરદાસજી ચારણ કવિઓના આદર્શ કવિ રહ્યા છે. હું પહેલા
અજમેરની બાજુમાં આવેલું નરહરદાસજીનું જન્મસ્થાનનું ગામ, લખાજી બારટનું સંતાન નરહરદાસજી, અને મારે ટહેલા જવાનું થયેલું એ પણ એક મારી સ્મૃતિનું, જીવન સ્મૃતિનું સૌથી શ્રેષ્ઠ છે પ્રસંગ છે. એ વખતે પણ કાકા તમે બધા ભેગા હતા, આપણે સાથે હતા. આપણે ટહેલા ગયા, આદરણીય લખાવત સાહેબને ટેલિફોનિક કોન્ટેક્ટ કર્યો, ઓમકારસિંહજી લખાવતને, કે હું નરહરદાસજીની જન્મભૂમિનું દર્શન કરવા માટે ટહેલા આવું છું. અને અમે ટહેલા ગયા. નરહરદાસજીના જન્મસ્થળ અને એમના પરિવારો, લખાજીના વંશજો જ્યાં રહે છે. મારા જીવનમાં બે સ્થળ ધામ જેવા છે રાણીદાન. એક તો મઢડા સોનબાઈ માના દર્શન કરવા માટે જ્યારે પહેલી વખત મઢડા જવાનું થયું, આ સોનબાઈ માના જન્મસ્થાને, ત્યારે મારા હૃદયમાં એક એવી લાગણી જન્મી હતી કે આ ધરતી પર પગ રાખતા પહેલા આ ધરતીની ધૂળને માથા પર મૂકવી જોઈએ. એટલે એક અનુભવ મારો મઢડા સાથે એવો જોડાયેલો છે કે આ સોનબાઈ માની જન્મભૂમિ ઉપર ગાડીમાંથી પગ રાખતા પહેલા ગાડીમાં બેઠા બેઠા એ ધરતીની ધૂળ લઈને માથે રાખવાની મારી લાગણી થયેલી. અને એવી જ રીતે હું જ્યારે ટહેલા ગયો અને નરહરદાસજીની મહાન એક ચારણ, સિદ્ધ ચારણ જેને કહેવાય, એવા સિદ્ધ ચારણની જન્મભૂમિ, કર્મભૂમિ, અને એ જે ધરતીમાં એમણે વિચરણ કર્યું છે, એ હું ધરતી જોતો તો મને આમ અંદરો અંદરથી એવી ઉર્મી થતી હતી કે આ જે ડુંગરો જોઉં છું એમને નરહરદાસજીએ પણ ક્યારેક એમની આંખોથી જોયા હશે. અને એ બધી એક અદ્ભુત અનુભૂતિઓ હતી. ત્યારે ટહેલાની ધરતી ઉપર જતા ગાડીમાંથી ઉતરતા પહેલા જે ધરતીમાં નરહરદાસ જેવો ચારણ કવિ જન્મ્યો હોય એ ધરતીની ધૂળને પહેલા મસ્તક પર મૂકવાની મને ઉર્મી થયેલી. એટલે આ એ મારા જીવનનું સૌથી મોટું સૌભાગ્ય છે. નરહરદાસજી અવતાર ચરિત્ર એ નામ ચારણી જગત માટે, ચારણી સાહિત્યના ઉપાસકો માટે અજાણ્યું નથી, પણ કેટલીક ઘટનાઓ એવી છે કે જે સામાન્ય જનમાનસ સુધી નથી પહોંચી. અવતાર ચરિત્રના નામથી લગભગ ચારણો પરિચિત છે, ચારણી સાહિત્યમાં રુચિ ધરાવનારા લોકો પરિચિત છે. મારો અભિગમ તો એ છે કે મારે અવતાર ચરિત્ર એટલું સરળ અને સહજ રીતે લોક સમુદાય સુધી પહોંચાડવા મારા જીવનમાં જેટલું બને એટલો પ્રયાસ કરવાનો છે કે દરેક વ્યક્તિ નરહરદાસજીની મહેનતને, એની સાધનાને સમજી શકે. આજે આ વંશવાદનો યુગ છે. સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ થઈ ત્યારથી વંશવાદનો યુગ છે. દરેક વ્યક્તિ એમ ઈચ્છતો હોય કે મારા પછી મારી ધરોહર, મારો વારસો મારા સંતાનો ચલાવે. એમાં 400 વર્ષ પહેલા એક વ્યક્તિ એક મૌલિક સોચ લઈને આવ્યો છે. 400 વર્ષ પહેલા નરહરદાસજી એક મૌલિક ચિંતન સાથે જગતમાં આવ્યા છે. જો નારાયણસિંહજી તોલેસર, જય માતાજી હુકમ, વેણીદાનજી સાતા, પ્રવીણદાન કવિરાજ, બધા મિત્રો જોડાણા છો. હું વાત કરતો કરતો એટલો લયબદ્ધ થઈ જાઉં છું નરહરદાસજીમાં, મને એવો ઓતપ્રોત થઈ જાઉં છું કે કદાચ બધા મિત્રોના નામ હું ન લઈ શકું તો ક્ષમા કરજો. રઘુવીરસિંહજી, મહેશદાન, મહેડુ સાતા, ખૂબ સરસ બધા જોડાઈ રહ્યા છો. મને આનંદ થાય છે તમે બધાને આમ આબાને મળવાનું થાય છે એટલે. કિશનદાન દેથા આલમ સર, વાહ વાહ વાહ. મિત્રો, આ જે વાત કરું છું એ વાત આપ બધાએ કંઈક અલગ હૃદયથી સાંભળો એવી મારી લાગણી છે. અવતાર ચરિત્રનું સર્જન કરવા પાછળ એક આખી ઘટના છે. એવું સાંભળવામાં આવ્યું છે કે નરહરદાસજીને સંતાન ન હતું અને ઘણી બધી વાતોની વચ્ચે, હવે અત્યારે તો મારે ટૂંકમાં તમને વાત કરવી હોય, પણ નરહરદાસજીના ધર્મપત્નીએ એક એવો આગ્રહ કરેલો કે કવિરાજ આપ બીજા લગ્ન કરો અને આપને સંતાન થાય. એટલે નરહરદાસજી તો પરમ વૈષ્ણવ ભક્ત અને રાજકવિ, રાજદ્વારી વ્યક્તિત્વ, એમણે એના જીવનમાં પોતાનો વારસો શરીરથી જ કોઈ વ્યક્તિ સંભાળે તો સંભાળી શકે એવી ભાવના એના હૃદયમાં જન્મેલી નહીં. એટલે એમના પત્નીએ ખૂબ આગ્રહ કર્યો કે તમે બીજા લગ્ન કરો. એટલે નરહરદાસજીએ બીજા લગ્ન કરવાનું કારણ પૂછ્યું. ત્યારે નરહરદાસજીના પત્નીએ, ચારણ મહાદેવીએ એમ કીધેલું કે કવિરાજ આપ બીજા લગ્ન કરો તો જગત આપણાને જે આ વાંઝિયા મેણું આપે છે એ મેણાથી આપણે મુક્ત બનીએ. હવે જો નરહરદાસજીની જે મૌલિક સોચ છે, મયુરભાઈ જય માતાજી, નરહરદાસજીની જે મૌલિક સોચ છે એ આ જગ્યાએ પ્રતીત થાય છે. ચારણ કવિરાજ જ્યારે એમની પત્નીનો અતિ આગ્રહ થયો ત્યારે એમણે એમ કીધું કે દેવી,
તમારી વાત સાચી છે. આપણે એક સંતાન હોવું જોઈએ, જેનાથી આપણી પાછળ આ શરીર આપણું છૂટી જાય એના પાછળ પણ આપણો વારસો જીવંત રહે. પણ તમે મને થોડોક સમય આપો. આપણા દાંપત્ય જીવનથી સંતાનનું કદાચ પરમાત્માની ઈચ્છા નહીં હોય એટલે આપણે સંતાન નથી, પણ તમે મને થોડોક એવો સમય આપો, હું તમારી લાગણીને ચોક્કસ સંતોષીશ. અને સાહેબ, નરહરદાસજી એક એવું કામ કરે છે, વર્તમાન યુગમાં પણ આ કામ પથદર્શક છે. કવિ, સાહિત્યકાર કે કોઈ પણ પ્રકારનો જે વિશિષ્ટ પ્રતિભાવાન વ્યક્તિ છે એનો વારસો એની કવિતા છે. નરહરદાસજી આ સંદેશ લઈને જગતને આવ્યા છે કે મારો વારસ, મારો વંશજ એ માત્ર કોઈ પંચમહાભૂતનો દેહ ધારણ કરનાર ન હોઈ શકે. હું તો કવિ છું. હું ચાહું તો યુગો સુધી ચિરંજીવ રહી શકું છું. અને નરહરદાસજીએ એક નૂતન અભિગમ અપનાવ્યો. એમના પત્નીને કહ્યું, દેવી, મારે થોડી સાધના કરવી છે, આપ મને એકાંત આપો. અને એવું સાંભળવા મળે છે કે ખાસા લાંબા સમય સુધી નરહરદાસજી તો સુખી સંપન્ન વ્યક્તિ હતા. એમના પિતાશ્રી લખાજી બારહટ અકબરના દરબારની અંદર માનવંતા કવિ હતા, અથવા તો મુઘલ સામ્રાજ્યની અંદર એમનું જબરજસ્ત માન હતું જે તે બાદશાહના સમયમાં. એનો એવા એક રાજદ્વારી ચારણનો પુત્ર હતા નરહરદાસજી. કોઈ સામાન્ય માણસ નહોતા. અને દિલ્હીના શહેનશાહ દ્વારા લખાજીને મથુરામાં હવેલીનું નિર્માણ કરી આપવામાં આવેલું. અને નરહરદાસજીનો અભ્યાસ અને નરહરદાસજીનો ઘણો બધો જીવનનો સમય એ મથુરામાં વીતેલો, એટલે એમના પર વૈષ્ણવ ભક્તિનો પ્રભાવ પણ ત્યાંથી આવ્યો હોય. એ સમય હિન્દીમાં બોલવાની કંઈક લાગણી છે મિત્રોની, એવું છે. જય માતાજી, હુકમ મહેશદાન મેળું. મને એમ છે કે હું જે બોલું છું એ લગભગ તો તમે સમજી શકો છો गुजराती में पण. फिर भी चलिए आप सबका आदेश शिरोमान्य. नरहरदास जी को जब उनकी पत्नी ने अति आग्रह किया तब उन्होंने कहा कि मैं साधना करना चाहता हूं और अपने निवास स्थान पर एक अलग कुटिया बनाकर नरहरदास जी साधना रत हो गए. संपूर्ण विरक्त जीवन जिया. एक त्यागी की भांति उपासना और साधना करते रहे. समग्र भोग वैभव और विलास का त्याग करके जब निश्चित समय पूर्ण हुआ तब नरहरदास जी ने, मैं अवतार चरित्र का सर्जन कैसे हुआ उसके ऊपर आपको बात कर रहा हूं. अवतार चरित्र के कवित और उसकी कुछ कथाएं तो आपको बाद में मैं बताऊंगा, लेकिन उसके बाद में नरहरदास जी ने जब अपनी साधना सुनिश्चित समय पर पूर्ण हुई तब बाहर आकर अपनी पत्नी से कहा था कि देवी आपका ऐसा आग्रह था कि हमारी एक संतान होनी चाहिए. नरहरदास जी एम कहे छे, गुजराती हिंदी બધું આપ સમજી શકો છો. નરહરદાસજી એમની પત્નીને એમ કહે છે કે દેવી તમારો એવો આગ્રહ છે કે આપણે સંતાન હોવું જોઈએ, પણ સંતાન થાય એ નામ રાખનાર પણ થાય અને નામ બોલનાર પણ થાય. સંતાન તો આપણે દેહધારી છીએ તો આપણા દેહનો નાશ થાય અને દરેક દેહધારીનો નાશ થાય એમ સંતાનનો પણ સમય વીતે. દરેકને આ પાંચ મહાભૂતનું શરીર છોડવું જોઈએ. પણ ચારણ મહાત્મા નરહરદાસજી એમ કહે છે કે દેવી હું મારો માનસ પુત્ર અવતાર ચરિત્ર આપને આપું છું. આ જગતમાં જ્યાં સુધી વિધવતા રહેશે ત્યાં સુધી મારો અવતાર ચરિત્ર વિદ્વાનોના ખોળામાં બેસશે. આ જગતમાં જે વિદ્વાન હશે એના ખોળામાં મારો અવતાર ચરિત્ર બેસશે. અને એવા એક વિશ્વાસ સાથે ચારણ મહાત્મા નરહરદાસજીએ ઈશ્વરના 24 અવતારના વર્ણન સાથે પૂર્ણ કરેલો ગ્રંથ એમની પત્નીના હાથમાં સમર્પિત કર્યો હતો. આ મૌલિક ઘટના છે. ભૌતિકતાની પાછળ દોડતા લોકો માટે નરહરદાસજીનો આ બહુ મોટો સંદેશ છે. ઈશ્વર ભક્તિ, કવિતા અને ચારણ કર્મ તરીકે સાહિત્યનું સર્જન એ જ મારો વારસો હોઈ શકે એ સંદેશ લઈને નરહરદાસજી સમાજ સમક્ષ આવ્યા છે. અદ્ભુત ગ્રંથની રચના કરી છે નરહરદાસજીએ. મેં હમણાં કહ્યું એમ રામા અવતારના પ્રારંભે નરહરદાસજી કહે છે ગારંભે યગરેશમ બદન સિંદૂર યરુણ બિચ્છરિયમ બહન આસુ વૈચિત્ર્યમ બુદ્ધિ વરદાતા લંબોદર. જો ચારણી સાહિત્યના કવિ છે નરહરદાસ. નરહરદાસજીની વાણીને વિદ્વતાથી જ્યારે વિદ્વાનો તુલના કરે છે
ત્યારે નરહરદાસજીની સંસ્કૃત પર અદ્ભુત પકડ છે. રામાવતારના પ્રારંભે ગાથામાં આ જે શબ્દો લખ્યા છે, આપણે કોઈ વેદની રૂચાઓ વાંચતા હોઈએ એવી આપણાને અનુભૂતિ થાય. આરંભે અગ્રેશમ વદન સિંદૂર યરુણ બેછરિયમ વાહન આસુ વૈચિત્રયમ બુદ્ધિ વરદાતા લંબોદર શ્વેત ગિરિવાસ સકલ શ્વેત વસનાય વિમલ શશી વદની હંસરથ વીણા હસ્ત સદ વિદ્યા નિદાની સરસ્વતી મૂલ શક્તિ મહામાયા જ્વાલાનન જ્યોતિ જાલપયા નગર કોટી નિવાસમ જગજેતા વંદે જગત જન્ની. હે જગત જન્ની, હે જ્વાલા દેવી. નરહરદાસજી જ્વાલા દેવીની વંદના કરી છે, જ્વાળામુખીની વંદના કરી છે. કારણ જ્વાળામુખીની વંદના કરવા પાછળના ઘણા કારણો છે. નરહરદાસજી ચારણ છે એટલે એ રીતે માતૃભક્ત હોય. ભલે નારાયણના 24 અવતારનું, ઈશ્વરના 24 અવતારનું વર્ણન કરે છે, પણ ચારણ તરીકે માને ભૂલી ન શકે. એ રીતે नरहरदास जी, ओ नारायण सिंह जी तोलेश्वर, स्वामी नरहरदास जी की धन्य धरा से उनके वंशज चारणत्व के अग्रदूत लखावत साहब चारण शक्ति के इस लाइव कार्यक्रम में हृदय तल से स्वागत है. बहुत आनंद की बात है, आदरणीय ओमकार सिंह जी लखावत साहब स्वयं भी इस पेज से जुड़े हैं और अभी हमारे सबके साथ लखावत साहब भी शरीक हो रहे हैं. आदरणीय लखावत साहब का हृदयपूर्वक हम स्वागत करते हैं. लखावत साहब को हृदयपूर्वक विनम्र भाव से जय माता जी. और समग्र मैं तो लखावतों को कहता हूँ कि आप धन्य हैं, आपकी धरा धन्य है, आपके परिवार में नरहरदास जी ने जन्म लिया. मैं उस धरती को किसी तीर्थ से कम कभी नहीं समझता. मैं जब जब लखावत साहब से मेरी बात होती है तब मैं उन्हें कहता हूँ कि लखावत होने के नाते नरहरदास जी के वंशज तो आप हैं, लेकिन मैं स्वयं अपने आप को नरहरदास जी के अनुयायी से कम नहीं समझता. नरहरदास जी मेरे आदर्श कवि हैं. तो नरहरदास जी ने ज्वालामुखी की उपासना की है. ज्वालामुखी की क्यों उपासना की? नरहरदास संपूर्ण सचेत कवि हैं. जगदम्बा के 51 शक्तिपीठ में सती के देहों के विभिन्न भाग जहाँ पर गिरे हैं वहाँ पर एक शक्तिपीठ है. जहाँ पर हृदय गिरा है वहाँ अंबाजी है. जहाँ ब्रह्मरंध्र गिरा है वहाँ हिंगलाज है. जहाँ पर नयन गिरे, आंखें गिरी है वहाँ नयना देवी है. कटी भाग गिरा है वहाँ कामाक्षा है. वैसे ही सती का जहाँ जिह्वा का भाग गिरा है, जहाँ जीभ गिरी है, जुबान गिरी है, वहाँ ज्वालामुखी है. और ज्वालामुखी सती का, जगदम्बा का जिह्वा का भाग है. चारण जिह्वा के माध्यम से अपनी पहचान बनाता है. कवि जिह्वा के माध्यम से अपनी पहचान बनाता है. इसलिए नरहरदास जी शक्ति के अनेक स्वरूपों में से ज्वालामुखी स्वरूप की उपासना करते हैं. ज्वाला जी मेरी कुलदेवी है, मैं भी ज्वाला का उपासक हूँ. इस नाते मेरी और नरहरदास जी की उपासना करीब पहुंचती जाती है. मूल शक्ति महामाया ज्वालानन ज्योति जालपया नगर कोटि निवासम जगजेता वंदे जगत जननी. लखावत साहब जय माता जी, हुकुम आपका जय माता जी हम तक पहुंचा. आज मैं मेरे घर बैठकर आप सबसे उपस्थित रूबरू हो रहा हूं, ये मेरा सौभाग्य है. और विशेषकर नारायण सिंह जी तोलेश्वर साहब और मेरे भाई श्री भंवरदान जी, इन्होंने जो ये मुझे आज माध्यम दिया है, मैं इनका बहुत बहुत ऋणी रहूंगा. नरहरदास जी बात करते हैं शारदा की. देखिए नरहरदास जी की विचक्षणता, मैं तो एक एक शब्द पर बोलता जाऊंगा तो रातों की रातें खत्म हो जाएंगी. श्वेत गिरिवास सकल श्वेत. नरहरदास जी जब शारदा की उपासना करते हैं तो क्या कहते हैं? कौन, किस शारदा की मैं उपासना करता हूं? तो पहले तो कहा कि श्वेत गिरिवास. श्वेत गिरि यानी कि हिमालय पर जो शक्ति विराजमान है. हिमालय शिव का स्थान है. शिव ज्ञान का, साधना का, समर्पण का, त्याग का, वैराग्य का भंडार है. मैं उस शारदा की उपासना करता हूं जो वैराग्य के पर्वत पर विराजमान होती है. वाह वाह. नरहरदास जी की विचक्षणता आप देखिए, वो एक एक शब्द के अंदर कितनी बातें भर देते हैं. फिर कहते हैं सकल श्वेत. श्वेत गिरिवास सकल श्वेत विमलाय शशि वदनी. सकल श्वेत माने क्या है? नरहरदास ने सकल श्वेत क्या है ये समझना कवियों पर, पाठकों पर छोड़ दिया. सकल श्वेत क्या है? शारदा जहां पर विराजमान है वो हिमालय का पर्वत श्वेत है. शारदा जहां पर विराजमान हुई है वो स्फटिक का पत्थर, स्फटिक का आसन श्वेत है. जहां से गंगा का प्रवाह बह रहा है वो भी श्वेत यानी कि सफेद है. शारदा ने गले में जो स्फटिक की माला धारण की है वो भी श्वेत है. शारदा के अंग पर जो साड़ी धारण की हुई है वो भी श्वेत है. शारदा के गले में रहे मोती वो भी श्वेत हैं.
शारदा का वाहन हंस वो भी श्वेत है, शारदा के हाथ में रहे वेद के पत्र वो भी श्वेत है, और शारदा अपने साधकों को जो ज्ञान देती है वो भी श्वेत यानी कि निष्कलंक है। इसलिए नरहरदास जी कहते हैं श्वेत गिरिवास सकल श्वेत वसनाय विमल शशि वदनी हंस रथ वीणा हस्त शद विद्या निदानी सरस्वती। मैं मात्र विद्या का उपासक नहीं हूं, नरहरदास जी कहते हैं मैं चारण हूं, मैं सद विद्या का उपासक हूं। विद्या मेरा आर्थिक उपार्जन का माध्यम नहीं है, विद्या मुझे आत्मा से परमात्मा तक जोड़ने वाली कड़ी है। इसलिए नरहरदास जी कहते हैं मैं सद विद्या का उपासक हूँ। बहुत सारे राजस्थानी मित्र जुड़ गए हैं, इसलिए मुझे हिंदी में बोलना पड़ रहा है, और गुजराती मित्र तो हिंदी समझते हैं। मलावा से मुरारदान जी, मलावा बहुत सालों पहले आना हुआ था, स्वर्गस्थ अक्षयदान जी बारठ की शायद स्मरणांजलि का कोई कार्यक्रम था और मलावा आना हुआ था, और आज मलावा की याद आ गई। गढ़वी जीत, आप सब जुड़ रहे हैं, मैं सबका स्वागत करता हूं। अमरदान जी चारण, हिंगलाजदान चारण मिंडावास, मिंडावास तो मेरा बहुत करीब का गांव है, मेरे सब रिश्तेदार हैं, मेरा ननिहाल भी है और कवि ज्वाला का गांव है। हे चारण वो कलम कहा है जिसमें भरे अंगारे थे। कवि ज्वाला, उसने बहुत सुंदर एक कविता लिखी, मुझे बहुत प्रिय है वो कविता। जिन पर छत्रियाणियों ने अपने सोहर वारे थे, हे चारण वो कलम कहाँ है जिसमें भरे अंगारे थे। एक सुंदर कविता कवि ज्वाला लिखी थी, और मैंने उसके प्रत्युत्तर में 2 पंक्तियां लिखी थी। आज बहुत साल पहले ये मिंडावास लिखा देखा तो मुझे याद आ रहा है। विक्रम चारण धूलिया, हरपालिया, मानदान जी गढ़वी, सबका स्वागत। दिलीप सिंह जी लखावत, वाह वाह, बहुत सर। ज्वाला की इस कविता के प्रत्युत्तर में मेरी 2 पंक्तियां थी। ज्वाला जी ने अफसोस किया है कि हे चारण वो कलम कहाँ है जिसमें भरे अंगारे थे। मैंने प्रत्युत्तर में कहा था कि वो कलम चारणों के पास अब नहीं रही। जो कलम नरहरदास जी के पास थी, जो ईश्वरदास जी के पास थी, जो मनोज देपावत के पास थी, वो जो दुला काग के पास थी, वो कलम आज नहीं रही। क्यों नहीं रही? कि काछ दृढ़ा था काछ छुटी और चित में माया जाले हैं। जिस चारण के चरित्र का जगत शपथ लिया करती थी, वो चारण अपने चरित्र से अगर चलित हो जाएगा तो चारण के पास वो कलम नहीं रहेगी। काछ दृढ़ा था काछ छुटी और चित में माया जाले हैं। जिन हाथों में माला रहती उनमें मधु के प्याले हैं। जोग छुटा अब जाप छुटे, साधना वो रही नहीं जिसने जीवन संवारे थे, और टूट चुकी वो कलम चारण की जिसमें भरे अंगारे थे। लेकिन फिर भी वो कलम तो जीवंत रहेगी। मुझे ये पंक्ति आज पुनः याद आ रही है तो मैं आपसे शेयर करने से खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। जय शरण ले उस जगदम्बा की जिसने अभय वचन दिया था, कली काल में सतयुग जैसा पावन उत्तम जीवन दिया था। शक्ति वही संस्कार देगी जो भी पूर्व हमारे थे, और फिर जागेगी कलम चारण की जिसमें भरे अंगारे थे। तो ये मिंडावास से जुड़ी बातें निकली। महिपाल जी रोडिया, आपका भी स्वागत है। रामदान जी और ML गढ़वी, वर्णु, जीत चारण, सब बहुत आनंद से हम नरहरदास जी की वेलकम। एक्स चौटन MLA साहब भी पधारे हैं। भरतदान तड़ला, आप सबका स्वागत है। सब मित्र जुड़ रहे हैं। भरतदान जी मुझे कभी कभी कहते हैं कि नरहरदास जी बारठ थे तो इस नाते उन पर ज्यादा अधिकार हमारा है, और आप नरहरदास जी और ईश्वरदास जी को सबसे आप अपनी कुछ धरोहर के माध्यम से ले जा रहे हैं, तो ये भी उनका एक प्रीति भाव है हमारे तरफ। नरहरदास जी ने जो अवतार चरित्र का सर्जन किया, मेरी दृष्टि से इस हेतु से सर्जन किया कि मैं जगत को एक ऐसा संदेश देना चाहता हूँ कि हमारी धरोहर, हमारी परंपरा किसी पंच महाभूत के शरीर की मोहताज नहीं है। हम विद्या के उपासक हैं, हम शारदा के उपासक हैं, हम शक्ति के उपासक हैं। नरहरदास जी नाम का एक चारण आज से 400 साल पहले एक ग्रंथ की रचना करे, अगर उनके घर 5-7 भी संतान होते तो शायद आज उनको जगत जानता या न जानता, लेकिन अवतार चरित्र के माध्यम से नरहरदास जी की जो उस दिन श्रद्धा थी, वो श्रद्धा आज भी जीवंत है। उन्होंने कहा था कि मेरा अवतार चरित्र जब तक जगत में विद्वता रहेगी, विद्वानों की गोद में विराजमान रहेगा, मैं गर्व के साथ कह सकता हूं
और अनुभूति के साथ कह सकता हूं कि कोई विद्वान व्यक्ति अगर हाथ में अवतार चरित्र लेकर बैठा हो और बहुत प्यारा सुंदर उसका स्वयं का पुत्र आकर अगर गोद में बैठ जाए तो एक क्षण के लिए यह भावना होती है कि मैं अवतार चरित्र को मेरी गोद से परे न करूं। वाह वाह। ये नरहरदास का संतान है, नरहरदास का मानस पुत्र है, नरहरदास जी की साधना का फल है, जो आज भी जगत के विद्वानों की गोद में विराजमान रहता है। तो दोस्तों, ये अवतार चरित्र का नरहरदास जी ने सर्जन किया। और हम सब, मुझे एक और विशेष बात, अवतार चरित्र का आज से पहले अभी तो प्रकाशित हुआ, हमारी राष्ट्रीय साहित्य अकादमी ने दिल्ली से अवतार चरित्र का प्रकाशन किया और जयपुर के पास खेड़ी गांव के रईस आदरणीय भंवरदान जी मधुकर ने, भंवरदान जी रत्नु मधुकर, उन्होंने बहुत ही सुंदर भावानुवाद किया अवतार चरित्र का। आज अवतार चरित्र सुलभ है, पहले अवतार चरित्र दुर्लभ था। अवतार चरित्र ग्रंथ प्राप्त करने के लिए, अवतार चरित्र का एक कवित प्राप्त करने के लिए मुझे भी बहुत सारे प्रयास करने पड़ते थे, लेकिन राष्ट्रीय साहित्य अकादमी ने अवतार चरित्र का प्रकाशन किया और समग्र साहित्य के उपासकों के लिए आज अवतार चरित्र सुलभ बना है। आदरणीय मधुकर जी से कुछ समय पहले पुष्पदान जी, हमारे पूर्व सांसद श्री भुज से, वो अवतार चरित्र में बहुत प्रीति रखते हैं। उन्होंने मुझे एक बार, मधुकर साहब से बात हुई थी, फिर मुझे नंबर भेजे और मेरी भी उनसे बात हुई, तो मधुकर साहब मुझे बता रहे थे कि मैं अवतार चरित्र का भावानुवाद लिख रहा था। ये सब कवियों की अपनी अपनी अनुभूति है, इसे ईश्वर की कृपा कहें, शारदा की कृपा कहें, या मैं तो ये कहूं कि स्वयं नरहरदास जी की कृपा कहें। मनोज सा मिश्रण, आपका भी स्वागत है। अवतार चरित्र के लिए ये मधुकर जी मुझे ये बता रहे थे कि मैं जब इनका भावानुवाद कर रहा था तब कई बार ऐसा होता था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे आकर कह रहा है कि इस पद का ये भावानुवाद है, इस पद का ये भावानुवाद है, इस पद का ये नरहरदास जी की चेतना आज भी हम सबको मार्गदर्शन कर रही है। हमने अवतार चरित्र राष्ट्रीय साहित्य अकादमी के माध्यम से आज सुलभ बना है। इससे पहले ज्ञान सागर छापखाना मुंबई में करीब 135-40 साल पहले अवतार चरित्र प्रकाशित हुआ था। उसके बाद अवतार चरित्र का प्रकाशन लगभग 1 सदी तक नहीं हुआ। इतने लंबे अरसे तक एक ग्रंथ समझ लो काल की गर्ता में कहीं धकेल दिया गया, लेकिन 1 सदी तक जिस ग्रंथ का प्रकाशन न हुआ हो, फिर भी जनमानस में जिस ग्रंथ की एक अपेक्षा रही हो, ये अवतार चरित्र की स्वयं की चेतना है। मुझे जो ज्ञान सागर छापखाना का अवतार चरित्र मिला, मैं आज आप सबसे मेरी निजी बातें भी शेयर कर रहा हूं। जसदन, सौराष्ट्र में जसदन के उदय भाई रत्नु मेरे बहुत करीबी मित्र है और मेरे सदगुरुदेव आई श्री गंगा माँ के सानिध्य में हम हमेशा मिला करते हैं, मेरे मार्गदर्शक हैं। वाला केशु भाई, आपनो पण स्वागत। जय होन भाई। तो उन्होंने मुझे ये ज्ञान सागर छापखाना का अवतार चरित्र दिया था और उसमें नरहरदास जी के ये अवतार चरित्र का प्रकाशन हुआ था। वो ग्रंथ आज भी मेरे घर में मैंने पूजा में रखा हुआ है और मेरे घर में मैं मेरे जिन इष्ट की पूजा करता हूँ उसके साथ आज भी मैं अवतार चरित्र का पूजन करता हूँ। अवतार चरित्र मेरा एक पूजनिक ग्रंथ है। तो नरहरदास जी ने अद्भुत वर्णन किए हैं। मैं आपको कुछ बातें कहूँ, ये तो अवतार चरित्र के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन नरहरदास जी की कविता सुनिए आप। नरसिंह अवतार से मैं कुछ बात कहूँ आपको। सब जानते हैं कि जब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कहा कि तेरा ईश्वर कहाँ है, तो प्रहलाद ने कहा कण कण में ईश्वर है। और ये विस्तृत बात है, हम सब ने सुनी हुई है विविध माध्यमों से, लेकिन नरहरदास जी उसको कुछ अलग तरीके से लेकर आते हैं। कुछ ही समय पहले मैंने ये नरसिंह अवतार GTPL डायरों पर प्रस्तुत भी कर दिया है, बहुत सारे सज्जनों ने सुना भी है, सराहा भी है। वैशाख शुक्ल 14 विशाल रवि होत यस्त गति संधि काल प्रहलाद कीन करुणाम पुकार थहरा यथम बताओ पड़ी धरार थर हर तथम बडग मगित गे हल हलित भूमि डरि यसुर देह भूभार युतारत प्रभु प्रवीण हरि तो जैर कब हु नकीन यह मुड्ढ दिखावत मोहि त्रास
अब देहु दरस करुणा निवास पितु मात तजो हूँ करी अनाथ को वह मोते दीन नाथ वैशाख शुक्ल 14 विशाल अन रवि होत यस्त गति संत काल वैशाख शुक्ल 14 के दिन जब सूर्यास्त हो रहा था, ऐसे समय कबाण खींचकर हिरण्याकश्यप ने तीर का निशान प्रहलाद के ऊपर साध कर कहा था, गए प्रहलाद मेरी कबाण से तीर छूटने के साथ तेरे अस्तित्व को मैं नाश कर दूंगा। और नरहरदास जी अद्भुत बात करते हैं कि भाई शाक शुक्ल 14 विशाल। देखिए इन शब्दों को, इनके भाव को आप पकड़िए तो आपको नरहरदास जी की खूबी तब नजर आएंगी। ये मात्र नाद वैभव नहीं है, ये जैसे कुछ लोग कहा करते हैं कि चारणी साहित्य अष्टम पष्टम है, ऐसा कुछ नहीं है। ये विद्वता का सर्वोच्च शिखर है। नरहरदास जी क्या कहते हैं, वैशाख शुक्ल 14 विशाल रवि होत अस्त गति संधि काल प्रहलाद कीन करुणा पुकार थहराय थम बताओ पड़ी दरार। नरहरदास जी की चातुर्य देखिए आप, उनकी विचक्षणता देखिए कि ये जो पूरा वातावरण बन गया है, ये नरसिंह के प्रागट्य का वातावरण नहीं है। नरसिंह का तो अब तक अवतरण हुआ ही नहीं है। कथा में अभी तक तो भगवान नरसिंह का प्रागट्य भी नहीं हुआ है। पर प्रहलाद कीन करुणा पुकार थहराय थम बताओ पड़ी दरार थर हरत थम्ब डगमगित गे। पास में रहा वज्र का एक बड़ा थम्ब, वो थरहराने लगा, धरती कंपने लगी। थर हरत थम्ब डगमगित गे हल हलित भूमि डरी असुर देह। पूरी पृथ्वी कंपायमान होने लगी और असुरों के देह भी भयभीत हो गए। हल हलित भूमि डरी असुर देह भूभार उतारा। यहाँ कौन संवाद कर रहा है? प्रहलाद संवाद कर रहा है, परमात्मा से उसका सीधा संवाद है। भूभार उतारत प्रभु प्रवीण हरि हितो जैर कब हु नकीन। हीरदान मेड़ू नवानगर स्वागत। यह मूड दिखावत मोहि त्रास अब देहु दरस करुणा निवास। ये जो विराट यहाँ पर प्रकृति की उथल पाथल हो गई है, पूरी पृथ्वी कंप रही है, आकाश के अंदर भयंकर गर्जनाएं हो रही है, वज्र के स्तंभ भी थरहराने लगे हैं, ये नरसिंह के प्रागट्य से नहीं हुए। नरहरदास जी का चातुर्य यहाँ पर प्रस्तुत होता है। ये सब किससे हो रहे हैं कि प्रहलाद कीन करुणा पुकार थहराय थम बताओ पड़ी दरार। प्रहलाद के करुण पुकार से लोह के स्तंभ के अंदर दरार पड़ गई। અને ગુજરાતીમાં કહું તો એમ કહેવાય કે જેનો પોકાર થાંભલામાં તિરાડો પાડી શકે એના માટે ઈશ્વરે પ્રગટ થવું પડે। પ્રહલાદના પોકારમાં નરહરદાસજી કહે છે કેટલી તાકાત હતી। પ્રહલાદના પોકારની અંદર એટલી વિરાટ આર્તનાદ હતો કે પ્રહલાદના પોકારથી થાંભલામાં દરાર પડી ગઈ હતી, તિરાડ પડી ગઈ। આ વાત નરહરદાસજીની મૌલિકતા છે। આવું अन्य બીજો કોઈ નથી કહી શક્યું। આ નરહરદાસજી ક્યાંયથી બીબા ઢાળ નથી લાયા, આ નરહરદાસજી ક્યાંયથી પરંપરાગત નથી લાયા, પણ પ્રહલાદ कीन करुणा पुकार थहराय थम्ब तव पड़ी दरार थर हरत थम्ब डगमगित गे हल हलित भूमि डरी असुर देह। एक भक्त जब पुकार करता है तब पूरी प्रकृति कंपायमान होने लगती है। ये नरहरदास का दर्शन है। और प्रहलाद के पुकार मात्र से ब्रह्मांड हलवलित हो जाता है। नरहरदास जी कहते हैं प्रहलाद ईश्वर से संवाद करता है कि मेरे सामने जो खड़ा है वो तो इस पंचमहाभूत के देह का पिता है, मैं उससे बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो परम पिता से बात कर रहा हूं। प्रहलाद कीन करुणा पुकार। प्रहलाद कहता है पितु मात तजो हूं करी अनाथ को वह है मौते दीन नाथ। तेज सिंह जी चौहान स्वागत है। आज तो बहुत सारे लोग पृथ्वीराज जी चौहान की भी स्मृति कर रहे थे। यही बाण चहुआन राम रावण युद्धप्यो, यही बाण चहुआन करण श्री अर्जुन कप्यो, यही बाण चहुआन लक्ष्मण ब्रह्मर कर वेंद्यो, यही बाण चहुआन शिव त्रिपुरासर संध्यो, सो बाण तो कर चढ़्यो चंद बिरद साचो चवे, अन चौहान राय सांभरपति के मत चूके ताते तवे। गौरीशा का वध करने वाले पृथ्वीराज चौहान की भी आज स्मृति हो रही थी। और नरसा अड्डा साहब जय हो साहब जय सो। कितने विद्वान लोग जुड़े हैं पूरे भारत के आज इनसे। प्रहलाद कहता है, मैं बात का दौर नरहरदास जी के माध्यम से पुनः स्थापित करता हूं कि मेरे पिता ने, मेरी माता ने मुझे अनाथ रूप छोड़ दिया है। अखिल जगत सब अपने कर्म बांध्यो, नाचत है तारी दई दई तुम ही नचाईबो। नरहरदास कहते हैं, प्रहलाद कहता है हे परमात्मा, ये तो दूसरी दुनिया ऐसे कहती है कि प्रहलाद को उसका पिता त्रास दे रहा है। मैं ये बात नहीं मानता। क्यों? कि मैं एक भक्त के रूप से मेरी इतनी श्रद्धा है
कि समस्त ब्रह्मांड में तेरी इच्छा के बिना एक पवन पत्र भी नहीं चल सकता। तो मेरे पिता की क्या मजाल कि मेरे ऊपर ये त्रास दे सके, लेकिन हे ईश्वर, ये समस्त तेरी लीला है। तू स्वयं चाहता है कि मेरे ऊपर त्रास हो, तू स्वयं चाहता है कि मैं यातनाएं सहूं, इसलिए मुझे ये त्रास, ये यातनाएं मिल रही है। लेकिन वह अखिल जगत सब आपने कर्म बांध्यो, नाचत है तारी दई दई तुम ही नचाई बो, और करता हूं अकर्ता अन्यथा न समर्थ हरि, विग्रता हूं मन में न बन को बहाई बो। यशवंत भाई गढ़वी मास्टर साहेब, स्वागत है आपનું પણ। महू से पतित की जो पुकार न लगे कान, ये शब्द साहब नरहरदास जी लिख सकते हैं। ये भाव नरहरदास जैसा पवित्र चारण ही धारण कर सकता है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि जब नरहरदास जी ये बातें लिखते हैं तब नरहर नरहर मिटकर प्रहलाद बन जाता है। वाह वाह। नरहर के हृदय में स्वयं प्रहलाद आकर विराजमान हो जाता है। नरहरदास जी उन भावों को पकड़ते हैं जो स्तंभ के सामने खड़ा हुआ प्रहलाद महसूस करता है। वो भावचारण महात्मा नरहरदास जी और महसूस करते हैं। सुहागी से एक्स सरपंच अंबादान जी, मेरी जन्मभूमि से अंबादान जी को बहुत बहुत, और समग्र सुहागी वासियों को विजय माता जी। बापू भाई पंचालिया, आपको भी जय माता जी। प्रहलाद को महसूस करते हुए नरहरदास जी कहते हैं कि मेरे ऊपर मेरे पिता के कवाण से ये तीर छूटने के साथ मेरा प्राण तो निकल जाएगा, लेकिन ये कोई बड़ी घटना नहीं है। मेरे जैसे असंख्य लोग रोज जन्म लेते हैं और रोज मरते हैं, लेकिन एक बड़ी बात होगी कि मेरा ये अस्तित्व मेरे पिता के बाण से मिटने के साथ, हे परम पिता, इस संसार में से दो तेरे नाम नष्ट हो जाएंगे। अगर मैं पापी हूं और तू मेरे आवाज को अपने कानों पर नहीं धारण कर सकता, तो आज के बाद तुझे कोई भी पतित पावन नहीं कहेगा। अगर मैं पापी हूं और तू मेरा उद्धार नहीं करेगा, तो आज के बाद एक तो तुझे कोई पतित पावन नहीं कहेगा, और आज के बाद तुझे कोई अशरण शरण नहीं कहेगा, तुझे कोई अनाथों का नाथ नहीं कहेगा। महू से पतित की, महू से पतित की जो पुकार न लगे कान, तो छांडी देहु पतित उदाहरण कहाई बो। प्रहलाद कहता है अगर मैं पापी हूं और आप मेरा पुकार नहीं सुन सकते, तो हे परमात्मा, आज से आपको पतित पावन कोई नहीं कहेगा। और नरहरदास जी लिखते हैं कि इतना कहने के साथ तो वज्र के स्तंभ की भयंकर गड़हड़ाहट सुनाई दी। हमारे मूली के सिंडायज रविदान जी सिंडायज, उन्होंने एक सुंदर नरहर अवतार का, नरसिंह अवतार का प्रागट्य लिखा है कि जैसे ही प्रहलाद का ये पुकार हुआ और उसके साथ ब्रह्मांड ये शाह काड़ काते याडाड़ याडाड़ंदा दिजल युचलम दड़ 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 धमक थड़ड़ भय भूदर खड़ड़ बेरु शिव ध्यान खुलम तड़ तड़ सिर द्वंद दरद यशुरान तन गड़ड़ हाश मठ हड़ गण बट दट असुरान प्रकट गट भंजन विकट रूप नरसिंह बने, जिम विकट रूप नरसिंह बने। और यहाँ पर महात्मा नरहरदास जी क्या कहते हैं कि जैसे ही प्रहलाद का पुकार पूर्ण हुआ और उसके साथ क्या हुआ कि यह कहत गरज पहुंचो यकास इंद्रासन डोलो अति सत्रास शिवटार्यो जोग निद्रा संबंध मद सुकित भय दिग्गज मदंत अन फहराज घोष तब फट्यो थंब अवतार भयो नर हरि यशंभ कट कट ही दसन द्रड्डा विकास शशिसुर ज्वलन त्रयचक प्रकाश कृतजम्ब प्रदीपत मुकराल रक्त नैन जिह्वा सचाल प्रभु उच्च हिरण्य कश्यप पछार धरथित गोद भय ग्रह द्वार। और महात्मा नरहरदास जी कहते हैं कि इतना कहते हैं के साथ तो प्रहलाद एक गर्जना आकाश को छूने लगी, प्रहलाद की इन करुणा पुकार। और इतने के साथ यह कहत गरज पहुंचो यकास इंद्रासन डोल्यो अति सत्रास शिव टर्यो जोग निद्रा संबंध। भगवान सदाशिव की समाधि छूट गई। मद सुकित भय दिग्गज मदंत कट कट ही दसन द्रड्डा विकास शशिसुर ज्वलन त्रयचक प्रकाश अन फहराय घोष तव फट्यो थंब। भयंकर गर्जना के साथ स्तंभ के अंदर से दरार में से एक हुंकार के साथ नरसिंह का प्रागट्य हुआ। प्रभु उच्च के हिरण्य कश्यप पछार दरिथित गोद भय गृह द्वार तह देव कीन क्रीड़ा सुतंत्र आंदोल हार यासूर अंत्र। नरहरदास जी कहते हैं इस प्रकार अपने भक्त का उद्धार करने के लिए परमात्मा ने नरसिंह रूप धारण करके प्रहलाद का उद्धार किया और हिरण्यकश्यप का वध किया।
ऐसी 24 अवतार की गाथाओं को नरहरदास जी ने अवतार चरित्र के अंदर आलेखित किया। विशेषकर रामावतार और कृष्णावतार दोनों को विराट स्वरूप से नरहरदास जी ने आलेखित किया। संपूर्ण रामायण में अभी अवतार चरित्र, वाल्मीकि रामायण और माँ तुलसी जी का मानस, रसिक बिहारी का कवित, ये सब हम जब साथ करके देखते हैं तो नरहरदास जी परंपरागत कविताओं के साथ अपने मौलिक विचारों को भी प्रस्तुत करते नजर आए। नरहरदास जी ने सिर्फ ऐसा नहीं किया कि ये पूर्व से ऐसी आगे बात चली आ रही है, वो संस्कृत में थी, खड़ी बोली में थी, हिंदी भाषा में थी और मैं इसे सिर्फ चारणी साहित्य में या चारण भाषा में या पिंगल भाषा में ट्रांसफर कर दूं। नहीं, नरहरदास जी ने सारी कविताओं के साथ अपना गहन अध्ययन, पुराणों का, शास्त्रों का विस्तृत अभ्यास और अपने मौलिक चिंतन वो सब प्रस्तुत किए। रामा अवतार को विराट स्वरूप से नरहरदास जी ने लिखा है। भगवान नरहरदास जी ने एक से बढ़कर एक बातें कही है। एक से एक बातें कहते हुए नरहरदास जी ने रामावतार को वर्णित किया है। मैं रामावतार का तो कितना वर्णन करूं, कितनी बातें कहूं आपसे। नारायण सिंह जी, आप आज ये फेसबुक के माध्यम से आप और भंवरदान जी जो प्रयास कर रहे हैं, मेरे जैसे असंख्य कवियों को, अनेक कवियों को घर बैठे समग्र समाज के सामने अपनी बातें रखने का अवसर मिल रहा है। मैं चारण समाज के, चारणी साहित्य के और समग्र साहित्य के युवा अभियासियों से आह्वान करता हूं कि कवि क्या पुरुषार्थ करता है, कवि कितनी मेहनत करता है, ये समझने के लिए एक बार आप अवतार चरित्र अवश्य पढ़ें। इतना विराट ग्रंथ लिखा है, लेकिन कहीं भी नरहरदास जी ने कोई भी बात शास्त्र सम्मत न हो ऐसी नहीं कही। चारणी साहित्य के नाद वैभव वाले प्रचुर कवित नरहरदास जी ने लिखे हैं, लेकिन नाद वैभव के लिए नरहरदास जी ने किसी भी जगह पर मात्र और मात्र नाद वैभव के लिए शब्दों का सहारा नहीं लिया। नरहरदास जी ने एक भी शब्द, मैं दावे के साथ कहता हूं, चाहे विद्वान इसका संशोधन भी करें, नरहरदास जी के प्रति मेरा पक्षपात है, किसी को ऐसा लगे कि ये बात थोड़ी ज्यादा कही जा रही है, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, आदरणीय छगनदान जी बालोत्रा से जय माता जी हुक्म, नरहरदास जी ने समग्र कविता में नाद वैभव के लिए कहीं भी भाषा के साथ कोई समझौता नहीं किया। नरहरदास जी ने एक भी शब्द ऐसा प्रयोजित नहीं किया जिसका भाषा के माध्यम से योग्य और उचित अर्थ न हो। ये नरहरदास जी की विद्वता है और ये नरहरदास जी की जागृति है। मैं नरहरदास जी के रामायण के आपको कुछ कवित कहूं। धनुष्य भंग के प्रसंग की बात करते हुए महात्मा ने लिखा है, वाल्मीकि जी आह्वान करते हैं भगवान राघव को, हे राघव, 10,000 योद्धा यहाँ से घूमकर चले गए हैं, कोई भी शिव के इस पिनाक धनुष को नहीं उठा सका। और गुरु आह्वान करता है, और गुरु जब आह्वान करता है तो नरहरदास जी कहते हैं किस भाषा में आह्वान करता है। पंथ भयानक वन प्रवेश ताड़का निपाति शतरुष भुज सेना समेत छह देव भव साती बिनु फल सर के पंख बात मारीच ही मार्यो जी धनुष कीजे एते विजय अरे सौ दीजय सौमित्र कर रघुबीर धीर त्रिलोक बदित के हर खी चटाव हुचाप हर। हे भगवान राघव, महात्मा वाल्मीकि जी एम कहे छे, महात्मा विश्वामित्र एम कहे छे कि पंथ भयानक वन प्रवेश ताड़िका निपाती, जे धनुष्य थी ताड़कानो वध कर्यो, सुबाहु ने मारीच ने मार्या, ए धनुष्य लक्ष्मणना हाथમાં આપી અને આખા જગત વિદિત ત્રણે લોકની જેના પર દ્રષ્ટિ રહેલી છે એ ભગવાન શિવના આ યશપિનાક ધનુષ્યને આપ ઉઠાવો। અને નરહરદાસજી કહે છે કે જેમ રાઘવ ડગલા માંડે છે, પણ ત્યાં તો સર સરિતા સરવર સમુદ્ર મર જાદય મુક્કી ડર દિગ્ગજ ડગમગી કમલ બહુ ધ્યાન જ ચુક્કી धर निद्रुजी दशी गई प्रबल पबई विहार परी मिहिरबाज छुटी मग प्रकट दिग्देव कंप परी नागेश शेष फन माल नमी अन कौल कमट क्रम तज योग रघुबीर धीर त्रिलोक विदित यन जी छन भवधनु बन जयो। महात्मा नरहरदास जी मौलिक रूप से धनुष्य भंग का वर्णन करते हैं। नरहरदास जी अद्भुत बातें ले आते हैं। पंचवटी के अंदर से जब माता सीता स्वर्ण मृग को देखते हैं, राघव जब स्वर्ण मृग का शिकार
करने के लिए जानकी जी के आग्रह पर जाते हैं, उस समय का नरहरदास जी अद्भुत वर्णन करते हैं। जैसे भगवान राघव ने अपने हाथ में धनुष्य और बाण उठाए, कटिपट लपेट जट जूट को जार रक्त नैन मृगटीश जप कृत सज्ज धनुष टंकार कीन डिहचर वधक करवान लीन मृगराज चल निचले मृग हिमार संधान बान सुर काज सार। अपने हाथ में धनुष लेकर कटिपट लपेट जट जूट कोप आरक्त नैन मृगटीश जप कृत सज्ज धनुष टंकार कीन डिहचर वधक करवान लीन मृगराज चल निचले मृग हिमार। मृग मारने के लिए भगवान राघव पधार रहे हैं। नरहरदास जी के कैसे लग रहे हैं कि जैसे मृगराज यानी कि शेर जा रहा हो, सिंह जा रहा हो, ऐसी चाल से भगवान राघव भगवान राम चल रहे हैं। महेश भाई खुमान जय माता जी, गोविंदान जी जय माता जी। नरहरदास जी यहाँ कहते हैं जैसे ही धनुष धारण करके मृग का शिकार करने जाते हैं, मैं हर बार कहता हूं कि नरहरदास जी की मौलिक दृष्टि है। सभी कवियों ने लिखा है, सभी विद्वानों ने लिखा है कि मृग का शिकार किया। नरहरदास जी ने कुछ और बात लिखी है। मारीच स्वरूप मृग को जब नरहरदास जी कहते हैं कि भगवान राघव अपने कबाण पर तीर रखकर शिकार करने जाते हैं और एक तीर छूटे उससे पहले इतनी घटना संभव हो गया था। नरहरदास जी दर्शन करते हैं। नरहरदास जी जब जब भी अवतार चरित्र के किसी विशेष प्रसंग को लिखते हैं, तब मुझे ऐसा लगता है, मेरी स्वयं अनुभूति ऐसी है कि वे समाधिस्थ हो जाते होंगे और वो कवि मिटकर दृष्टा बन जाते होंगे। उनको ये सारा दृश्य अपनी दृष्टि के सामने दृष्टिगोचर होता होगा। नरहरदास जी लिखते हैं कि जैसे ही भगवान राघव ने धनुष्य पर बाण चढ़ाया और उसके साथ प्रकृति के अंदर बड़ी उथल पाथल होने लगी। महिपाल दान जी डाबड़ से जय माता जी। जैसे ही अपने कान तक धनुष्य की डोरी को खींचा और उसके साथ लिखते हैं कि राम सोच मुनि त्रास मौच हनुमंत विजय जस मई तन या वैधव्य समर दर दर नर राक्षस बक्ष पक्ष पलचरण मही श्रोणी भर मज्जन अरु जटायु युद्धरण अचल द्रोणाचल उच्छन सुग्रीव विभीषण राज सुख यन मृग स्वरूप मारीच मार संधान यते नरहर सुकवि के शुकर राम संगान सर यन राम सोच मुनित्रास मोच हनुमंत विजय जस। सामान्यतः ऐसा लग रहा है कि इस धनुष्य में से बाण छूटने के साथ मृग का वध होगा, लेकिन नरहरदास जी कह रहे हैं कि मृग वध नहीं हो रहा है। ये तो बहुत सारी घटनाएं एक साथ बन रही है। जैसे ही ये तीर छूट रहा है उसके साथ राम को चिंता यहां से ही प्रारंभ हो जाती है। क्या वजह है कि जानकी जी का हरण होगा और राम सोच। लेकिन जब राम को सोच होगा, जब राम को त्रास मिलेगा, जब राम को चिंता होगी, जब कोई वीर पुरुष चिंतामय होता है, तब बहुत सारे लोगों की चिंताएं दूर कर देता है। मुनि त्रास मोच, राम चिंतित होंगे लेकिन मुनियों की चिंता दूर हो जाएगी, मुनियों से त्रास दूर हो जाएगा। राम सोच मुनि त्रास मोच हनुमंत विजय जस। हनुमान नाम के एक कपिराज को विजय और यश दोनों प्राप्त हो जाएंगे अगर इस तीर से मारीच का वध हो जाए तो। कितनी दीर्घ दृष्टि से देखते हैं नरहरदास जी। राम सोच मुनि त्रास मोच हनुमंत विजय जस मैतनया वैधव्य। अगर इस तीर का छूटना हुआ तो मंदोदरी के ललाट में वैधव्य निश्चित हो जाएगा, रावण का वध निश्चित हो जाएगा। मैतन्ना वैधव्य समर दुर्धर नर राक्षस, और वानरों का और राक्षसों का भयंकर युद्ध हो जाएगा। समर दुर्धर नर राक्षस बाक्ष पाक्ष पलचरण महिश्रोणी भर मज्जन। इस धरती पर रक्त के मोजे उछलने लगेंगे और पलचर पक्षियों को, निशाचर पक्षियों को पेट भरकर मांस आरोगने के लिए मिलेगा। इतने योद्धाओं के सब धरती के ऊपर गिरेंगे। बक्ष पक्ष पलचरण महिश्रोणी भर मज्जन अरु जटायु युद्धरण अचल द्रोणाचल उच्छन। जो गति सिद्धों को नहीं मिलती, जो गति साधकों को नहीं मिलती, मानस में तुलसीदास जी ने लिखा है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत समय प्रभु आवत नाहि। वो गति एक गिद्ध पक्षी यानी कि जटायु को प्राप्त हो जाएगी। क्यों कि जानकी जी का हरण कर कर जा रहे रावण से जब जटायु युद्ध करेंगे और घायल होकर राम की गोद में जब प्राण त्याग करेंगे, उस वक्त
नरहरदास जी कहते हैं कि जटायु को वो गति प्राप्त होगी जो सिद्धों को, साधकों को भी नहीं मिलती। ये नरहरदास जी का दर्शन है, ये नरहरदास जी का अनन्य भक्ति भाव से लगाव है। राम सोच मुनि त्रास मोच हनुमंत विजय जस मई तनिया वैधव्य समर दुर्धर नर राक्षस बाक्ष पाक्ष पल चरण मही श्रोणी भरमज्जन अरु जटाज युद्धरण अचल द्रोणाचल उच्छन सुग्रीव विभीषण राज सुख। सुग्रीव और विभीषण जो दोनों ही अपने भाइयों से प्रताड़ित हैं, दोनों के साथ अन्याय किया जा रहा है, दोनों के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं। सुग्रीव विभीषण राज सुख, और अंत में ये होगा कि मृग स्वरूप मारीच। मारीच का मरना तो अंतिम घटना है, उनसे पहले तो ब्रह्मा जी ने इतनी घटनाओं को लिख दिया है। राम के हाथ से ये तीर छूटेगा, उसके साथ इतनी घटनाएं संभवित हो जाएगी। ये नरहरदास जी लिख सकते हैं। ये दृष्टि, ये नाद वैभव, ये कल्पनाएं गुजराती में આપણે જેને કહીએ કે અબોટ कल्पना, मौलिक कल्पनाएं, जहां पर कोई कवि नहीं पहुंचा वहां पर नरहरदास जी पहुंचे। और भगवान राघव के हाथ से मृग स्वरूप मारीच का वध होने के बाद जानकी जी हरण की घटना, उसके बाद विस्तृत वर्णन करते हुए सुंदरकांड का प्रारंभ करते करते तो नरहरदास जी इतने विराट रूप से अपनी कलम को आलेखित करने लगे थे कि सुंदरकांड लिखते नरहरदास जी ने पहले एक दोहा लिखा। रामचरितमानस का भी सुंदरकांड है, वाल्मीकि जी का भी सुंदरकांड है, लेकिन नरहरदास जी ने सुंदरकांड में एक सावधानी दे दी थी। सुंदरकांड का प्रारंभ करते नरहरदास जी ने प्रथम दुआ ये लिखा, अब सुंदर आरंभ भयो श्रोता सुनहु सुजान करहु उल्लंघन युद्ध दिको हनुमान बलवान। हे श्रोताओं, मैं चारण हूं और हनुमान जी के विराट पुरुषार्थ का, विराट पराक्रम का वर्णन कर रहा हूं। अब आप सावधान होकर सुनना, क्योंकि ये हनुमान के पराक्रम का वर्णन है और चलने वाली मेरी चारण की कलम है। इसमें इतना ओज है, इतनी दिव्यता है, इतना प्रचंड पराक्रम का वर्णन है कि कोई भी शुद्ध चित्त साधक सावधान होने के बिना इसे सुन भी नहीं सकता। अब सुंदर आरंभ भयो श्रोता सुनहु सुजान करहु उल्लंघन युद्ध दिको यन हनुमान बलवान। सीता शोध जुजागमन महाविजय दिग्राम मिली अनसंख्या दल क्रमन के करण सेतु जय काम। और नरहरदास जी कहते हैं कि कनकाचल प्रतिमा कपीश सोई वरण विराजित यरुण बदन विग्रह यमन चल रोम जचल चित सब निमान छंड्यो क्यों कपि विक्रम करयो महावीर हनुमान यतुल पौरस युद्धर्यो क्रम सर्जित भव रघुनाथ क्रोध प्रगट सुरासुर पिखयोग सामुद्र दरगम नर हर्ष कवि के यहाँ जपन आरंभ भयो। मैं बोलता गया, आप सुनते गए। लोगों को ऐसा लगता होगा कि ये नाद वैभव है या ये कविता है, परंपरागत कविता है। नहीं, नरहरदास जी इस कविता में संपूर्ण साधक की भूमिका पर खड़े हैं। आज आप सब फेसबुक पेज से लाइव हैं, मैं बहुत सारी जगहों पर ये बोला भी हूँ और आज फिर मैं कहना चाहता हूँ। नरहरदास जी ने सुंदरकांड में हनुमान की सीता शोध के प्रयासों को, शंभुदान जी आसिया आपका भी स्वागत, इसको मात्र एक घटना के रूप से नहीं लिया, इसको साधना के रूप से लिया। इसके भी विस्तृत वर्णन है। नरहरदास जी ने कितनी बारीकाई से देखा है कि कनकाचल प्रतिमा कपीश सोई वरण विराजित। कनकाचल पर्वत पर कनक नाम सुवर्ण, सुवर्ण जैसे वान वाला, सुवर्ण जैसे रंग वाला एक बानर विराट स्वरूप लेकर खड़ा हो गया। सोने जैसे पर्वत पर सोने जैसे देहधारी हनुमान पर्वत की जितनी ही अपनी विराटता प्रदर्शित करते हुए खड़ा हुआ। कनकाचल प्रतिमा कपीश सोई वरण विराजित अरुण बदन विग्रह अमान चल रोम अचल चित। ये तो पूरी साधना की बात है। जो चक्रों के साधक हैं, जो अष्टांग योग के साधक हैं, जो कुंडलिनी की जागृति से लेकर और ब्रह्मरंध्र तक की यात्रा करते हैं, उन योगियों के लिए जो बात है वो नरहरदास जी ने यहाँ पर लिखी है। मेरा तो फोकस पूरा कविता के माध्यम से है, मैं उस क्षेत्र में न कहूँ, लेकिन आपको एक बात कहूँ कि नरहरदास जी समाधिस्थ होकर लिखते थे और नरहरदास जी को ये सारे दृश्य दिखाई देते थे। ऐसी मैंने बात कही है, उसकी मैं आपको यहाँ पर प्रतीति करवाता हूँ। नरहरदास जी हनुमान जी का दर्शन करते हैं कि जैसे ही सुवर्ण के पर्वत
के ऊपर कनकाचल के ऊपर हनुमान जी सुवर्णवान से खड़े हुए, उस वक्त नरहरदास जी का सूक्ष्म दृश्य देखिए आप। वाह वाह। उस वक्त क्या हुआ कि अमान चल रोम अचल चित, इतनी बारीकाई से, इतनी सूक्ष्मता से नरहरदास जी देखते हैं कि हनुमान जी का चित्त स्थिर हो गया और वीर रस के आवेश से हनुमान जी के रोंगटे फरकने लगे, रुआड़ा फरकवा मंड्या। वाह वाह। ये साधना के बिना दृष्टि में नहीं आता। ये कविता की बात नहीं है, ये मात्र नाद वैभव की बात नहीं है, ये कविता पढ़ने से, वैण सगाई पढ़ने से नहीं आती। ये बात आती है मात्र और मात्र राममय बनने से, हनुमान की कृपा उतरने से, सदगुरु की कृपा उतरने से, माँ जगदम्बा की कृपा उतरने से। नरहरदास जी को जैसा दिखाई देता है ऐसा अन्य कवि को भी दिखाई देता है। सब निमान चंड्यो ये कुहन कवि विक्रम करियो, महावीर हनुमान अतुल पौरुष उद्धरयो, क्रम सर्जित बौ रघुनाथ क्रोध प्रगट सुरासुर पेख्यो, सामुद्र दुर्गम नरहर्षु कवि के यहाँ जपन आरंभ भयो। और जैसे ही हनुमान जी ने वहां से जंपन किया है, नरहरदास जी अद्भुत वर्णन कहते हैं। मैं विस्तृत वर्णन न करते आपको नाद वैभव के साथ ले चलता हूं। नरहर की कलम को आप स्वयं अनुभूत करिए। आंजनेय उखसी शीश आकाश परस्य यति प्रचंड विग्रह यभुत धनु देव दरस्य, राम रूप चित धरि पाद पर्वत धरि चंपी, कौल कमठ कसमसी यवनी असहन आकंपी, दिग्देव डरी ब्रह्मांड डगी अन भवन तीन जय जय भयो के कारण, सुशोध सीता कुंवरी अन कपि हनुमान जो कुदयो, दिग नाली गो लाय सदिग छहि मनु छुट्टो, मिली असेत निस गगन मग तारा जन तुट्टो, राम सरासन बान मन हुमा क्यों रिपुवारन। आज मंगलवार है और वैसे हनुमान जी के उपासकों के लिए भी ये हनुमान की साधना का दिन है। उस दिन हम सुंदरकांड की बात कर रहे हैं, बहुत सुंदर बात हो रही है। नरहरदास जी के एक इस कवित पर आप गौर कीजिए कि ये कवि कितनी विस्तृत रूप से लिखता है। जैसे ही हनुमान ने उड्डयन किया, साधना में रहे, नरहरदास जी ने देखा कि कनकाचल पर्वत के ऊपर से विराट स्वरूप पर्वताकार हनुमान जी उड्डयन कर रहा है। थान सिंह जी राठौड़ स्वागत है, आदरणीय शंभुदान जी लाड़स चारण का, जय माता जी साहब स्वागत है, हरिभाई पधारो पधारो। जय हनुमान जी उड्डयन करे છે પણ દિગ નાલી ગો લાય સદિગ છો હી મનુ છોટો મિલી અસેત નિશી ગગન મગ તારા જન તુટ્ટો, રામ સરાસન બાન મન હુમા ખ્યો रिपु मारन, कनका चल दिग दसन किधों करो गमन सकारन। नरहरदास जी का आप दर्शन देखिए, जैसे ही हनुमान ने उड्डयन किया, उड्डयन की गति कितनी है, वेग कितना है, वातावरण कैसा है कि तोप के अंदर से जैसे गोला छूटता है, दिग नाल गोला सदिग छो ही मनु छुट्टो। वाह वाह। लेकिन ये देखने के साथ नरहरदास जी को दूसरा दृश्य दिखाई दिया कि नहीं, तोप के गोले से ये गति ज्यादा है। नरहरदास जी की कल्पना, नरहरदास जी का मानस, नरहरदास जी की कविता हनुमान की गति को पकड़ते हैं। वाह वाह। पवन पुत्र की गति के साथ अगर कोई चल सका है तो मात्र नरहरदास जी की कल्पना चल सकी है। दिग नाल गो लाय सदिग छो ही मनु छुट्टो। सुखदेव भाई गोस्वामी, भरत सिंह जी जाडेजा जेसड़ा, जय हो। दिग नाल गो लाय सदिग छो ही मनु छुट्टो, मिली अशेत निशि गगन। तोप के गोले जैसी गति है तो नरहरदास जी ने कहा कि नहीं, आकाश में से टूटते हुए तारे जैसी गति हो गई है। मिली असेत निस गगन मग तारा जन तुट्टो, नहीं, ये तो तारे जैसी भी गति नहीं है। राम सरासन बान मन हुमो ख्यो रिपु मारन। करण सिंह जी सोलंकी, जय माता जी। भरत जी चारण दासोड़ी, जय माता जी। कि राम के हाथ से जैसे तीर छूटता है और असुरों का विनाश करने के लिए राघव का जो तीर जा रहा है, उस तीर के जैसी हनुमान जी की गति है। दिग नाल गो लाय सदिग छो ही मनु छुट्टो, मिली असेत निस गगन मग तारा जन तुट्टो, राम सरासन बान मन हुमो क्यों रिपु मारन, कनकांचल दिग्दर्शन किदों करो गमन सकारन। कनकाचल से ऊपर से जैसे ही हनुमान जी ने उड्डयन किया, नरहरदास जी कहते हैं कि तोप का गोला, आकाश से टूटता हुआ तारा और राघव के हाथ से छूटा हुआ तीर, इन तीनों को अतिक्रमण करके हनुमान जी की गति आगे बढ़ गई। वाह वाह। यहां तक सब कवि पहुंचे हैं। इस जगह पर वर्णन करने के लिए सभी विद्वानों ने प्रयास किया है, लेकिन अब जो नरहरदास जी लिख रहे हैं वो सिर्फ नरहरदास जी ही लिख सकते हैं। जानकी धरस
अभिलाष जी अन छीजत जुगबर छन ही छन करे बीर रूप हनुमान को अनुमान हूं धायो राम मन। वाह वाह। जानकी जी के दर्शन की अभिलाषा में जैसे एक क्षण एक युग जैसी लगती है, वो राघव का मन स्वयं हनुमान का स्वरूप लेकर जाता हो और मन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में जितनी देर लगती है, इतनी ही देर में हनुमान जी पूरे समुद्र को लांघ कर सामने पहुंच गए। वाह भाई वाह। जानकी दरस अभिलाष जी छीजत जुगबर छन ही छन करे रूप बीर हनुमान को अनुमान हूं धायो राम मन। ऐसे ही पर्वत सो जो जन 10 प्रमाण मिल गयो धारणी में 10 यमान फबका ही दात गिरी फाटत बूरी 4 भटे गज पक चारन चूरी। भगत बापू काक बापू आनो बहु सुंदर वर्णन करता क्या नरहरदास जी जे कीधु छे के बबका ही दात गिरी फटत बूरी 4 भटे गज पक चारन चूरी। कनकाचल पर्वत ઉપર મચરક દઈને જેમ હનુમાનજી ઉડ્ડયન કર્યું એક કવિત બોલાય છે। ભગત બાપુ પણ આ કવિત બોલતા, નરહરદાસજીના નામે બોલાય છે, પણ અવતાર ચરિત્રમાં આ કવિત સમાવિષ્ટ નથી, ક્યાંક ગિરધરદાસજીના નામે પણ બોલાય છે કે દીન હચક કર મચક લચક ધાર દારગીરી લસકત બિકલ નાગ દિગ્પાલ કૌલ કમટ કસ કસ્મત દસમૌલી ચકિત ચિત असुर साव અને હિમગીરી યતિ ખલબલ્યોક ગેરદાર બનાંત हनुमंत ज्यों के हो कर अंत लंका हल्यो। होकार करते हुए हनुमान जी ने जैसे लंका की तरफ उड्डयन किया, पर पर्वत सो जो जन 10 प्रमाण मिल गयो धारणी में 10 यमान। जिस पर्वत से हनुमान जी ने उड्डयन किया वो कनकाचल पर्वत पृथ्वी के अंदर 10 योजन तक धस गया। और यहाँ पर भगत बापू कवि का आगे एक सुंदर बात कहते थे अपनी काठियावाड़ी सौराष्ट्र की बोली में कि हनुमान जीए जे पर्वत माथे थी मचरक दीधी पण पाकी गયેલા ચીબડાની માથે જેમ હાથીનો પગ આવે અને બીયા બહાર નીકળી જાય એમ ધાતુઓ બહાર નીકળી ગઈ ભાઈ। पर्वत सो जो जन 10 प्रमाण मनु भाई जय माता जी मिली गयो धरणी में 10 यमान। ये हनुमान जी का उड्डयन नरहरदास जी लिखते हैं। विस्तृत कथाएं लिखी नरहरदास जी ने। मैं आज फेसबुक पेज पर लाइव होते हुए चारण शक्ति के इस समग्र अपने सभी बंधुओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। नारायण सिंह जी, भंवरदान भाई और अपनी पूरी टीम, आपका ये जो प्रयास है ये वर्तमान समय में अत्यंत आवश्यक है। मैं ये विषय लेकर आप सब तक पहुंचा, मेरे मन ये मेरा सौभाग्य है। नरहरदास जी की ये बातें ये स्वयं मेरे या किसी और कवि के मन में न रहते हुए जनमानस तक पहुंचे, इससे बड़ी कोई मेरी उपासना नहीं हो सकती। विस्तृत बातें हैं, समय समय पर करते भी रहेंगे। मैं आपको बहुत सारा समय हो गया होगा ऐसा मेरा मानना है। तो एक नरहरदास जी की कलम की और ताकत, नरहरदास जी की कलम की और एक क्षमता, जिसे हम कविता की दृष्टि से जब मूल्यांकन करना चाहें, वर्धिदान जी गढ़वी जय माता जी, तो देखिए नरहरदास जी ने 24 अवतार के वर्णनों में जहाँ जहाँ पर भी अपनी कलम का स्वरूप दिखाया है वहाँ पर विश्व के कवियों को नरहरदास जी का तरफ ध्यान आकर्षित करना होगा। ये बात हमारे ऊपर है, विशेषकर चारण कवियों के, चारण वक्ताओं के ऊपर है कि हम अवतार चरित्र जनमानस तक कितना पहुँचा सकते हैं। लेकिन जो पुरुषार्थ नरहरदास जी ने किया है वो किसी सामान्य कवि के बस की बात नहीं थी। किशन बाणेज जय माता जी। ध्रुवव्रत अवतार का नरहरदास जी वर्णन करते हैं। मैं आज बहुत सारी मेरी निजी बातें आपसे शेयर कर चुका हूं। आपको एक और बात कहूं कि अब जो मैं जिस कविता की बात करने जा रहा हूं उस कविता ने मुझे इतना भावुक किया था। विजय ऋषि शैतानदान जी देथा का भी स्वागत है। हीर सिंह जी पोकरणा बेरड़ी से आपका भी स्वागत है। ध्रुवव्रत अवतार का वर्णन है। बालक ध्रुव परमात्मा की उपासना करने के लिए जाता है, चतुर्भुज नारायण स्वयं प्रकट होते हैं। ये सब कथानक है, लेकिन नरहरदास जी की दृष्टि, नरहरदास जी की उपासना कुछ अलग तरीके से आती है। मैंने जब ये कवित पढ़े थे, जो मैं कविता अब आपके साथ प्रस्तुत करने के साथ, साजन गढ़वी जय माता जी भाई, नरहरदास जी ने ध्रुवव्रत अवतार का वर्णन करते हुए अपनी कलम को ध्रुव बालक के ऊपर न्यौछावर कर दिया है। 5 साल का ध्रुव परमात्मा की प्राप्ति करता है। स्वयं चतुर्भुज नारायण स्वयं उसके सामने प्रकट होकर खड़े हैं।
जगदम्बा लक्ष्मी जी उनके साथ खड़ी है। 5 साल का ध्रुव ईश्वर के स्वरूप का दर्शन करता है और वहां नरहरदास जी ध्रुव के मुख से एक स्तुति लिखते हैं। नरहर की कलम की ताकत को ध्रुव के अवतार की वंदना के साथ हम आज का ये अपना पूरा कार्यक्रम भगवती के चरणों में जब समर्पित करने जा रहे हैं फेसबुक पर लाइव होने का, मैं सभी कवियों को, विद्वानों को विद्वता की दृष्टि से कहता हूं, मात्र ये भक्ति ग्रंथ नहीं है, ये एक पुरुषार्थ का ग्रंथ है। कवि होना मतलब आलसी होना नहीं है, कवि होना मतलब पुरुषार्थी होना है। नरहरदास जी ने अवतार चरित्र में जो पुरुषार्थ किया है उस पर जब हम दृष्टि करते हैं, आदरणीय रतन सिंह जी का स्वागत है, उस पर जब हम दृष्टि करते हैं तब हमें पता चलता है कि इस कवि ने अपने जीवन में कितना पुरुषार्थ किया होगा, मां शारदा की कैसी उपासना की होगी और शब्दों को किस तरीके से साधा होगा। नरहरदास जी ध्रुव के मुख से 4 कवित लिखते हैं कि बालक ध्रुव के सामने स्वयं नारायण प्रकट हुए, बालक ध्रुव परमात्मा की स्तुति करता है। तो नरहरदास जी को मुझे ये लगता है कुछ ऐसा ख्याल आया होगा कि बालक जो है वो भी ईश्वर का स्वरूप है, सामने स्वयं नारायण प्रकट हुए हैं वो भी ईश्वर का स्वरूप है, ईश्वर के सामने ईश्वर खड़ा है और ईश्वर ईश्वर की स्तुति कर रहा है, तब वो स्तुति कुछ हटकर होनी चाहिए, विशेष होनी चाहिए। और नरहरदास जी ने अद्भुत स्तुति लिखी है। ये कवित जब मैंने पहली बार पढ़े थे तब मेरा एक मैं निजी अनुभव आप सबसे आज शेयर करता हूं। उस वक्त अवतार चरित्र को अपने हृदय से लगाकर कुछ क्षणों तक मैं भावुक हो गया था, मौन हो गया था। इस कवि की मेहनत को, इस कवि के पुरुषार्थ को मैं आंसुओं के सिवा और कुछ नहीं दे सकता था उस वक्त। नरहरदास जी ध्रुव के मुख से लिखते हैं, ये 4 कवित हैं। इन 4 कवितों की एक विशेषता है, प्रत्येक कवित में एक अक्षर से शुरुआत की गई है। पहला कवित है उसकी अ से शुरुआत की गई है, तो इस पूरे कवित के अंदर जितने भी शब्द आएंगे उन सभी शब्दों का पहला अक्षर अ ही होगा। और वो सभी शब्द ऐसे होंगे जिनका तत्व के रूप से, विराट स्वरूप से अर्थघटन होता है, जिनका शास्त्रोक्त रूप से अर्थघटन होता है। देखिए प्रथम कवित सुनिए आप, ध्रुव स्तुति करता है। नरहरदास जी सोचते हैं मैं कहां से शुरू करूं, तो नरहरदास तो शारदा का चहीता पुत्र है, जगदम्बा शारदा स्वयं उसके हृदय में स्थान लेकर बैठी है। भगवती कहती है कि वेद ओम से लिखते हैं, नरहर तू भी ओम से प्रारंभ कर। अजीत भाई गढ़वी जय हो, जय माता जी। और नरहरदास जी लिखते हैं, अ से शुरू होता है, आप ध्यान से सुनिए पूरा कवित, उसमें एक भी अक्षर ऐसा नहीं आएगा, एक भी शब्द ऐसा नहीं आएगा कि जिसका प्रथम अक्षर अ न हो। ओमकार अपार अखिल आधार अनामय आदि मध्य अवसान असम सम आत्म अव्यय एक अनेक अनंत अजित अवधूत अनोपम अनिल अनल आकाश अम्बु अवनिमय आत्म उत्पत्ति नाश कारण अतुल ईश अधोगत उद्धरण अधमध्य ऊर्ध व्यापित यमित तुम अनंत असरण शरण। ओमकार अपार, ईश्वर कैसा है, मैं कुछ आप देखिए, किसी को ऐसा लगे कि ये सिर्फ शब्द है, नहीं, इसका विराट अर्थघटन है। विद्वानों की दृष्टि से, तत्व की दृष्टि से, तत्ववेताओं की दृष्टि से इसका अर्थघटन है। ईश्वर क्या है, ध्रुव स्तुति करता है कि ईश्वर ओम स्वरूप है, ओमकार है। ओम आकार हो गया तो क्या ओम में ईश्वर बंध गया? नहीं, वो तो अपार है। ओमकार अपार, कितना अपार है कि समस्त का आधार है, अखिल आधार अनामय। आमय नाम पाप, जिससे कभी पाप स्पर्श नहीं करता, वो परमात्मा है। अखिल आधार अनामय आदि मध्य अवसान असम सम आत्म अव्यय एक अनेक अनंत अजित अवधूत अनुपम। दुर्गा सप्तशती में जब भगवती की ऋग्वेद के माध्यम से स्तुति की जाती है, तब माता जगदम्बा के लिए एक शब्द है एकानेका, जो एक है और जो अनेक है, जो समस्त विश्व को धारण करने वाली एकमात्र सत्ता है, इसके लिए वो एक है। ऋग्वेद का ये देवी सूक्त है, वो कहता है कि जो एकानेका यानी कि जो समस्त ब्रह्मांड को धारण करने वाली एक शक्ति है, इसलिए वो एक है। और समस्त ब्रह्मांड के प्रत्येक पदार्थ में, प्रत्येक प्राणी में उसका अस्तित्व है, इसलिए वो अनेक है।
यही बात यहाँ पर नरहरदास जी कहते हैं, ऋग्वेद से सम्मत बात कहते हैं। एक अनेक अनंत अजित अवधूत अनोपम। अब देखिए पंच महाभूत हैं, पंच महाभूतों के पंच तत्वों के नाम नरहरदास जी ऐसे खोज कर लाए हैं जिन 5 शब्दों के प्रथम अक्षर अ ही है। अनिल यानी कि वायु, अनल यानी कि अग्नि, अनिल अनल आकाश, आकाश तत्व, अनिल अनल आकाश, अंबु यानी कि पानी, और अवनि यानी कि पृथ्वी। सबके ऐसे शब्द नरहरदास जी ढूंढ कर लाए जिनका पहला अक्षर अ है। अनिल अनल आकाश। रमेश भाई राजगौर स्वागत है भाई। गोविंदान जी, अनिल अनल आकाश अंबु अवनि मय आतम उत्पत्ति नाश कारण अतुल ईश अधोगत उद्धरण अधमध्य ऊर्ध व्यापित अमित तुम अनंत असरन शरण। अभी प आता है, परम धाम परम ज्योति परम आनंद परमेश्वर परहित परकृत परम पूज्य परिब्रह्म जोग पर आत्म पर तत्व। अब मैं इन सब शब्दों के अर्थघटन करूं तो भी अर्थघटन हो सकते हैं, इतने विस्तृत नरहरदास जी ने लिखे हैं। परम धाम परम ज्योति परम आनंद परमेश्वर परहित परकृत परम पूज्य परिब्रह्म जोग पर आत्म पर तत्व परम पद प्रीति परोदय परमारथ पर श्रेय परम रिद्धि प्रकृति पराशय पर निधि सिद्धि परिब्रह्मपन परम पुरुष पर धाम पति पर ध्यान ज्ञान पर हित प्रिय के परम पति तो परम गति। अभी न आता है, निराकार निर्लेप निगम हित निकट निरंतर निर्विकार निर्धार नित्य नवधामस नरहर निरालंब निर्गुण निरी निर्वद्ध निरंजन निर्विग्रह निचल निदान निहकल नारायण निर्बोध निराकृत नाथ निज निगम हेत निर्नाशनित निग्रहण नाग नग युद्ध रन के नमस्कार नवरूप नीत। और अंतिम छपे में नरहरदास जी जय घोष करते हैं। इस जय घोष के साथ इस समग्र फेसबुक पेज पर आज हम जो चारण शक्ति ग्रुप पर लाइव हुए हैं, ये पूरा कार्यक्रम नरहरदास जी की पूरी वाणी अम्मा जगदम्बा के चरणों में समर्पित करें। इस जय घोष के साथ हम ये पूरी वाणी उन मित्रों को दें जिन्होंने ये प्रबल पुरुषार्थ करके, नारायण सिंह जी और भंवरदान और पूरी टीम ने ये आज आप सबके प्रत्यक्ष आने का मुझे अवसर दिया। और मैं पुनः आप सबसे आह्वान करता हूँ कि अवतार चरित्र सुलभ है। विशेषकर मैं वक्ताओं से, कवियों से और कलाकारों से, कथाकारों से कहता हूँ कि हम भी थोड़ा पुरुषार्थ करें। हम घिसी पिटी बातें प्रस्तुत करने की वजह आपको माँ जगदम्बा ने इतनी सुंदर वाणी दी है, इतना सुंदर कंठ दिया है, इतना मधुर आवाज दिया है, तो हम हर जगह अवतार चरित्र के कुछ न कुछ कवित प्रस्तुत करें। ये मेरी एक भावना है और मैं आप सबसे अनुरोध भी करता हूँ। और इसके साथ ये अंतिम कवित के साथ ये अवतार चरित्र की पूरी बातें मैं महात्मा नरहरदास जी के चरणों में सादर नमन के साथ, जगदम्बा के महादेव के चरणों में सादर नमन के साथ समर्पित करूंगा। और पुनः आपसे मिलने के लिए बहुत जल्द फिर किसी और कार्यक्रम के माध्यम से हम मिलते रहेंगे। तो नरहरदास जी का ये जो 4 विशेष कवित है उसमें ध्रुव के माध्यम से परमात्मा की स्तुति का ये अंतिम और चौथा कवित, जिसमें ज शब्द लिया गया है, ज से जय घोष किया गया है। जयति जयति जगदीश जगत कारण जोगेश्वर जगजित जगहित जगन्नाथ जग ज्योति जगत घर जग निवास जग शरण जगत पोषण जग नाशन जग तरन जग शरण जगत मंडन जोगासन जगबंधु जगतपति जग निधि जय हो जगत कारण करण जग पावन जगत निधान सुजस सदा सुकवि नर हर शरण जयति जयति जगदीश जगत कारण जोगेश्वर जगजित जगहित जगन्नाथ जग ज्योति जगत घर जग निवास जग सृजन जगत पोषण जग नाशन जग तरन जग शरण जगत मंडन जोगासन जगबंधु जगतपति जग निधि जय हो जगत कारण करण जग पावन जगत निधान सुजस सदा सुकवि नर हर शरण जग पावन जगत निधान सुजस सदा सुकवि नर हर शरण जग पावन जगत निधान सुजस सदा सुकवि नर हर शरण। जय माता जी, जय जगदम्बा, जय जगदीश।